morning students, welcome to the class. Students, last time we did the derivation of Lensmaker's formula and today we are doing the applications of Lensmaker's formula. Once the terms used in the Lensmaker's formula are clear with you, how to apply Lensmaker's formula in different situations become easier for all of you. So let's start with the biconvex lens or converging lens. Here what we have done, here we write the general formula, the Lensmaker formula, and then we put the terms with sign conventions in the Lensmaker formula and we find out whether the focal length is positive or negative. If the focal length, comes out to be positive, then the lens is the converging lens. We will see here, we will prove it here that the biconvex lens or the simple convex lens has the positive focal length and hence it is a converging lens. One thing I want to make very clear with you, with all of you, that while deriving the Lensmaker formula, we apply the refraction at spherical surfaces, the result rather of the refraction at spherical surfaces directly without taking into the sign conventions. But when we have to apply them in different situations like in these conceptuals or the numericals, we have to take the signs of U, V and R or this R1, R2 in these situations. Why? वहाँ पर जब आप when you apply in Lensmaker formula, जब आप Lensmaker formula में apply करते हो तो direct relation we apply whatever result we got from the refraction at spherical surfaces. But when we use this Lensmaker formula for finding the numericals or solving the problems, then we have to apply the sign conventions, because here this R1 and R2 whatever is given, they are in the terms of coordinates. And first of all, and the distances which are given in the problem, they are the distances. First of all, we have to convert the distances into the coordinates and then we have to solve the problem. ठीक है? जैसे जैसे हम करते जाएंगे, I hope the things will become clearer. Here, you have taken this biconvex lens. मैंने आपको पहले ही बोला था, the surface at which the light strikes first becomes R1 and the surface at which the light strikes afterwards becomes the R2. What general formula you have? We have 1 upon F refractive index of glass with respect to air, 1 upon R1 minus 1 upon R2. ठीक है, तो आप देखोगे क्या है यहाँ पर, R1 हमारा ये होगा और R2 मेरा ये होगा. R1 means radius of curvature is here, the radius of curvature is on the right side. तो मेरा R1 जो है equal to R2, मैग्नीट्यूड R1 और R2 की R होगी, लेकिन R1 जो है आपका is positive क्योंकि it lies on the in the direction, इस डायरेक्शन में जाएगा राइट साइड पे, और R2 जहां पर लाइट आफ्टरवर्ड स्ट्राइक कर रही है वो नेगेटिव है. तो मैं सारी वैल्यूज जब सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा आंसर आएगा A refractive index of glass with respect to air minus 1 2 upon R. Since all of you know that refractive index of glass with respect to air is 1.5, so this term 1.5 minus 1 comes out to be 0.5. Since all the terms on the right hand side are positive, so 1 upon F will be positive, hence F will be positive and thus it is converging. Similarly, we'll do for the concave lens. Here again we will put the values of R1 and R2 with their signs in the Lensmaker's formula. वो क्या है, R1 R2 यहाँ लिखेंगे. अब देखो यहाँ R1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, R2 पॉजिटिव हो जाएगा, and when you will substitute all these values, the result is a refractive index of glass with respect to air minus 1 minus 2 by R. So it is very clear from the right hand side that focal length comes out to be negative. Hence the concave lens is a diverging lens because इसकी focal length हम जो यहाँ derive कर रहे हैं वो क्या है, negative है. Now we'll apply it for the plane convex lens and plano convex lens. ठीक है, concave lens, sorry. तो what is plane convex lens?
it is plane on one side and convex on other side. You can draw it otherwise also. इस साइड से आप इसको convex बना दे, दूसरी साइड से आप plane बना दे. The only difference will be in the radius of curvatures. ठीक है, तो आपके पास आ गया. यहाँ पर मेरे पास पहली सरफेस जो आई वो मैंने ले ली आपकी ये प्लेन वाली. एंड यू नो what is the radius of curvature of the plane surface? That is infinity. सेकेंड सरफेस आ गई ये जो स्फेरिकल है, that is R2. उसका आ जाएगा नेगेटिव. आप सब्स्टिट्यूट करेंगे R1 की जगह इंफिनिटी और R2 की जगह नेगेटिव, तो आपके पास रिलेशन ये निकलेगा. फोकल लेंथ देखो, अगेन मैं वही वाला यहाँ पर यूज करूंगी आर्ग्यूमेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5. 1.5 minus 1 is 0.5. तो सारी टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव. सिंस ऑल द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव, तो 1 upon f इज पॉजिटिव, हेंस f इज पॉजिटिव. और अगर f पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है? कन्वर्जिंग. अब यहां पर प्लेन कॉनकेव लेंस, वन साइड इज प्लेन, अदर इज कॉनकेव लेंस. तो जहां पे प्लेन होगा दैट विल बी योर इंफिनिटी. और R2 since it is curved on this side, तो R2 हमारा पॉजिटिव आएगा. Putting the values, we'll find out that 1 upon f comes out to be negative. If it is negative, then it is diverging lens. ठीक है? Now let's come to the other situations. Now what happens when the medium, the surrounding medium is changed? All that we have done so far in these cases, हमने यहाँ पर क्या लिया है? Surrounding medium is taken as air. But what happens when we change the surrounding medium? Okay. So first case, when the lens is kept in air. ठीक है? We have a convex lens, or you can say now it is a converging lens, and you are keeping it in the air. When you keep it in the air, the ray of light comes from the rarer to the denser medium, and when the light comes from the rarer to denser medium, it will move towards the normal. मतलब उस जो रिफ्रैक्शन होगी दो सरफेसेस पे होगी. अभी लास्ट में हमने पहले ही किया है कि दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होगी, एक इस पे एक इस पे, एंड फाइनली इट विल मूव हेयर रिफ्रैक्टेड रे, और ये लेंस आपकी कन्वर्जिंग लेंस होगी. अब आप इसमें पुट करके देख लो, हमने अभी लास्ट में पुट किया था पिछले पेज पे, तो यही आया था हमारा. अब आपने क्या किया है, इसी लेंस को हमने किस में रखा है? वाटर में. ठीक है, वाटर में रखने से क्या होगा, आपके पास जो आपका फॉर्मूला है, लेंस पे का फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यू विल सब्स्टिट्यूट हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, तो ये वैल्यू तो सेम आएगी बिकॉज R1 इक्वल टू R2, क्योंकि ये लेंस रिमेन्स द सेम. लेंस इज सेम. व्हाट वी आर चेंजिंग द मीडियम. नाउ हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या आएगा? ग्लास का इट इज 1.5 एंड वाटर का 1.3. द आंसर इज 1.1. अगेन 1.1 अगर मैं बोलूं 1.1 minus 1, it is 0.1. The term is positive. The term is positive. तो all the terms since on the right hand side are positive, तो एक बात क्लियर होगी कि फोकल लेंथ जो है वो हमारी पॉजिटिव आएगी. अब देखते हैं कि इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. यहां से ऑब्वियस है कि 1 upon f is directly proportional to mu minus 1. तो f is inversely proportional to mu minus 1. 1 upon f is directly, तो f is inversely proportional to 1 upon mu minus 1. तो आपकी यहां से क्लियर है ये टर्म कि अगर जब मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था और यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, तो वहां पर माइनस करके 0.5 आया था, यहां माइनस करके 0.1 आया. तो वाटर वाले केस में ये टर्म जो है वो कम आ रही है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म. तो जिसमें कम आएगी उसमें फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा. तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ कहां पे ज्यादा होने वाली है? वाटर के केस में. तो फोकल लेंथ अगर आप इन दो केसेस को कंपेयर करें तो फोकल लेंथ हेयर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टर्म, ये वाली, ये जो टर्म आ रही है इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है. इस केस में ये टर्म इज मोर, दिस टर्म इज, ये ज्यादा है, 0.5 है, ये 0.1 है. 1 upon f is proportional to this, तो f is proportional to 1 upon this, means focal length is inversely proportional to mu minus 1. Focal length is inversely proportional to mu minus
1। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, जितनी ये टर्म छोटी होगी उतनी ये टर्म बड़ी होगी। तो वाटर के केस में ये टर्म छोटी आती है, इसलिए हम इसको ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगले पार्ट पे। When the same lens is kept in an optically denser medium, क्या होगा जब हम इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रखेंगे, यानी कि अब सराउंडिंग मीडियम जो है वो हमारा, हमने एक म्यू एम ले लिया और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो क्या आएगा, यहां पर आप वही सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब हम पहले इस टर्म को देखेंगे, सिंस म्यू जी अपॉन म्यू एम, ठीक है, ये वाली टर्म की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि म्यू एम आपने क्या लिया, ऑप्टिकली डेंसर है, तो म्यू एम इज ग्रेटर देन म्यू जी, यानी कि म्यू जी इज लेस देन म्यू एम, और म्यू जी अपॉन म्यू एम इज लेस देन 1। तो इसका मतलब है अगर ये टर्म जो है वो 1 से कम होगी तो ऑब्वियसली ये टर्म हमारी नेगेटिव आने वाली है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव। इन दिस सिचुएशन द अदरवाइज कन्वर्जिंग लेंस, otherwise converging lens का मतलब हुआ the lens which behaves as a converging lens when the surrounding medium is air now is behaving like a diverging lens when the refractive index of the surrounding medium is more than its own refractive index। यानी कि जब हम इसी लेंस को किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, जैसे कि एयर, तो ये लेंस बिहेव करेगी नॉर्मल जैसा कि ये है, जैसे कि ये कन्वर्जिंग है। लेकिन जब हम इसी लेंस को किसी ऐसे मीडियम में प्लेस कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाता है, तो इसका नेचर रिवर्स हो जाता है। अगर ये आपकी कन्वर्जिंग है तो ये क्या बन जाएगी, डाइवर्जिंग। सिमिलरली आप देखेंगे कि अगर आपने डाइवर्जिंग लेंस ली है तो वो बिहेव करेगी एज अ कन्वर्जिंग लेंस, कब, जब उसको किसी ऐसे मीडियम में रखा जाएगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसका नेचर वैसा ही रहता है जैसा कि वो एयर में है। ठीक है, नाउ कम व्हेन द सराउंडिंग मीडियम हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो लाइट क्या करेगी, ये भी एयर का मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, मटेरियल का भी वही है, द रेज विल गो अनडिविएटेड, वहां पे कोई भी डिविएशन नहीं होगी। एंड हेंस आप देखोगे जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे 1/fm कम्स आउट टू बी 0, इट मीन्स fm इज इंफिनिटी, यानी कि ये लेंस बिहेव करेगी एज अ प्लेन आपकी कोई शीट ऑफ ग्लास जिसमें कोई रिफ्रैक्शन, कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। नाउ कम टू द कनकेव पार्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कनकेव में लेंस को आपने किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज सिमिलरली। ये वाली टर्म आपको पता है क्या आने वाली है, नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो इट विल बिकम पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, हेंस द लेंस बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस। सो अब आपको याद रखना है, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि जिसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग, नो, इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग मीडियम, कि वो ऑलवेज, दे डोंट ऑलवेज बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग और अ डाइवर्जिंग लेंस। यस, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग एंड कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, लेकिन कब, जब उनका सराउंडिंग मीडियम जो है वो एयर है या कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके अपने मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। बट दे कैन ऑल्सो चेंज देयर बिहेवियर, यानी कि कॉन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग बन सकती है और कॉन्केव जो है वो कन्वर्जिंग बन सकती है, अगर हम उनको किसी ऐसे मटेरियल में प्लेस कर दें जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए। ठीक है, आई होप so. Now let's do some questions. The question is, a converging lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid with a medium having the same refractive index. What would be the focal length of the lens in the medium? अभी हमने किया है ये पीछे, बट अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द जिस भी मटेरियल का वो बना है वो यहाँ लिखा है 1.5,
मैं फॉर्मूला लिखूंगी 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 -1/r2। बट क्या सिचुएशन दी गई है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द सराउंडिंग मीडियम इज हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ये कितना आएगा 1, बिकॉज इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देती हूं। तो बताओ इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? सेम है। तो इट इज 1 - 1 1/r1 -1/r2। तो 1/f कम्स आउट टू बी 0। तो f किसके बराबर आएगा? इनफाइनाइट, यानी कि द लेंस विल बिहेव लाइक अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। अभी हमने पीछे किया था कि अगर आप किसी लेंस को किसी ऐसे मटेरियल में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अपने मटेरियल के बराबर होता है, तो फिर वो स्फेरिकल सरफेस की तरह या लेंस की तरह बिहेव नहीं करते। वो क्या बिहेव करते हैं? एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, बिकॉज इट इज हैविंग द फोकल लेंथ इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज sunglasses have curved surfaces but they do not have any power. Sunglasses जो आप यूज करते हैं to decrease the glare of the sunlight, they have उनकी curved surfaces होते हैं but they do not have any power. मतलब वो आपके ना तो कॉन्वेक्स लेंस होती हैं ना ही वो कॉन्केव लेंस होती हैं। Why? ठीक है, तो आप देखोगे कि जो आपके सनग्लासेस हैं they have curved surface in the same direction, they have the curve in the same direction। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इट इज 1/r1 -1/r2, दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r के बराबर होगा, बट दोनों का और होगा भी क्या? नेगेटिव। ठीक है, तो हियर both are negative, so we'll substitute one r1 equal to r2 equal to r we are taking here. So it is minus of minus r. It comes out to be +1/r, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। एंड इफ 1/f आपका किसके बराबर आया? 0। एंड व्हाट डू यू हैव? 1/f इक्वल टू पावर। तो पावर ऑफ द लेंस कम्स आउट टू बी 0। क्या आती है पावर ऑफ द लेंस? पावर ऑफ द लेंस कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ a lens of glass is immersed in water. What will be its effect on focal length and power of the lens? ठीक है, so हम पहले इसको करते हैं। Lens of glass is immersed in water. ठीक है, what will be its effect on focal length and power of the lens? तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले आप राइट डाउन करें ये। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फोकल लेंथ जो होती है 1/f इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इट एम्प्लॉयज फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये टर्म जितनी छोटी होगी फोकल लेंथ उतनी बड़ी होगी। नाउ इन केस ऑफ वाटर, मैं ये करा चुकी हूं पहले, इन केस ऑफ वाटर is 0.1 and in case of air it is 0.5. Since less than, therefore ये आपका इनवर्स रिलेशन है, तो फोकल लेंथ इन water will be more as compared to
एयर। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पावर उसका रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, कम होगा। तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, पावर ऑफ वाटर इज लेस देन पावर इन एयर। ठीक है, दोनों का बता दिया। अगर आपको वो पहले वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे तो ये आराम से समझ में आएंगे। Briefly explain how the focal length of a convex lens changes with increase in the wavelength of incident light। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ का रिलेशन है किसके साथ, μ-1 के साथ। ठीक है, एंड म्यू का रिलेशन है किसके साथ, लैम्डा के साथ। क्लियर हुआ, फोकल लेंथ μ-1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहां पर ये। तो आप देखो यहां से इट एम्प्लॉयज, ठीक है, ये भी म्यू का रिलेशन है, ये भी म्यू का रिलेशन है। क्लियर हुआ, मींस ये भी म्यू का रिलेशन है, ये भी म्यू का, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, μ-1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो यहां से कंक्लूड हो गया देयरफॉर आपका फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो देखो, ठीक है, अगर मुझे रिलेशन पता हो तो फिर मैं चेंज निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। हाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस चेंजेस विद इंक्रीज इन द फोकल वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो इफ द incident wavelength of incident light increases, focal length also increases। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 मार्क्स के। क्लियर हुआ। नाउ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। ठीक है, मैंने बना लिया, N2 मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। is held in a reference medium of refractive index N1। ठीक है, तो मेरा सराउंडिंग मीडियम इज N1। Trace the path of the parallel beam of light passing through the lens when N1 equal to N2। अभी मैंने किया कि जब N1 और N2 बराबर होते हैं तो आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो पास करेगी विदाउट एनी डिविएशन। दिस इज द केस व्हेन N1 इक्वल टू N2। What happens when N1 is less than N2? ठीक है, ये मेरा N2 है, ये N1 है, ये N1 है। देखो अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप ये वाला केस ऐसे ले सकते हो कि N1 is less than N2। तो एयर में भी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन द ग्लास, तो आपकी कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करती है ना एज ए कॉन्वर्जिंग। तो आप यही याद रखो कि इस केस में इसने क्या बिहेव करना है, कॉन्वर्जिंग। वैसे तो आप टेक्निकली भी देख सकते हो, लेकिन इसको आपने इस तरीके से करना है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये बन गई आपकी डाइवर्जिंग लेंस। नेचर जो है वो ऑपोजिट हो जाता है, कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग बन जाती है, अगर डाइवर्जिंग है तो कन्वर्जिंग बन जाती है। यही क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो इन विद कॉन्केव लेंस। उसमें ये वाला केस सेम रहेगा, ऐसे ही जाएगी। ये वाला केस जो उसका ओरिजिनल केस है वो डाइवर्ज करेगा, और इस केस में वो क्या करेगा, वो बन जाएगा आपका कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो मैं अगर ड्रॉ कर दूं आपको यहाँ पे, अगर हमारे पास इस केस में ये बनेगा, ये आ गया मेरा डाइवर्जिंग। इस केस में ये बनेगा, और इस केस में ये बनेगा। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्केव। अब न्यूमेरिकल्स हैं। अ बाइफोकल लेंस हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जल्दी से करेंगे। ये फोकल लेंथ कितनी है,
2/3 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस, यानी कि दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है, बाईफोकल है ना. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. वी हैव टू फाइंड आउट ये, ठीक है. लेट अस सब्स्टिट्यूट. इसको आप म्यू भी लिख सकते हो सिंपली. अब ध्यान क्या रखना है आपने, साइंस का देखो R1 आपका पॉजिटिव आएगा और R2 जो है वो R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज नेगेटिव. बस इसमें साइन यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट, क्योंकि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला निकला होता है ये हम लोगों ने क्या किया होता है, ये हमने कोऑर्डिनेट्स में निकाला होता है, और ये जो चीजें दी होती है ये डिस्टेंसेस होते हैं, इसको कन्वर्ट करना होता है पहले. तो यहां से आ गया 1/r माइनस, ठीक है, और इसकी जगह हमें दिया है 2/3r. तो ये चला जाएगा ऊपर 3/2r और ये मेरा आ जाएगा 2r. r और r यहां से कैंसिल हो जाएंगे. इट एम्प्लॉयज 3/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. 2 बच गया ना इसके साथ. इट एम्प्लॉयज म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 और म्यू इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1. इट इज 7/4. ये कितना आएगा, इसको आप निकालो 1 पॉइंट और कितना बचा 4 1 4 31.7. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1.7. क्लियर? Students, let's do one value based question. Value based questions I have told you earlier also. These are basically the application of the concept or the topic learned in the daily life situations, where the concept learned is applied in the real life. When, for example, in this topic we have learned the lens maker's formula. Now how this lens maker formula helps us in our daily life situations and what outcome is drawn from it, what values are depicted from it, that is on which these questions are based. Okay, let's start. Mrs. Rashmi Singh broke her reading glasses when she went to the shopkeeper to order new specs. He suggested that she should get spectacles with plastic lenses instead of glass lenses. On getting the new spectacles, she found that the new ones were thicker than the earlier ones. She asked this question to the shopkeeper, but he could not offer satisfactory explanation for this. At home, Mrs. Singh raised the same question to her daughter Anuja, who explained why plastic lenses were thicker. Write 2 qualities displayed each by Anuja and her mother. How B part hai, how do you explain this fact using lens maker's formula? So in this question, one real life situation is given where a lady broke her reading glasses, and when she goes to the shopkeeper to get her specs repaired, the shopkeeper suggested her कि आप plastic lenses use करिए instead of glass lenses. You can now get your specs fitted by these plastic lenses. और वो उसकी बात मानकर वो plastic lenses उसमें fit करवाती है. और जब when she gets her new specs, she found कि जो lenses प्लास्टिक के lenses उसने अब यूज किए हैं, they are comparatively thicker than her previous ones. जो ग्लास के उसके lenses थे वो पतले थे, और जो प्लास्टिक के lenses अब उसमें रिप्लेस किए गए हैं तो वो मोटे हैं, वो थोड़े थिक हैं. तो वो क्वेश्चन जो है वो शॉपकीपर को रेज करती है और पूछती है कि ऐसा क्यों है. द शॉपकीपर वॉज नॉट एबल टू गिव हर द सेटिस्फैक्टरी आंसर. देन शी केम बैक और वो सेम क्वेश्चन अपनी डॉटर को पूछती है, और उसकी डॉटर उसे ये एक्सप्लेन करती है कि वाई प्लास्टिक लेंसेज आर थिकर देन द ग्लास लेंसेज. आपको बताना है, ये पूरी सिचुएशन आपने समझ ली. नाउ बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन आपको बताना है राइट 2 क्वालिटीज डिस्प्लेड ईच बाय अनुजा एंड हर मदर. इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि अनुजा की मदर ने क्या क्वालिटी डिपिक्ट की. उसने
अवेयरनेस कि जब वो न्यू स्पेक्स लेने जाती है तो वो देखती है कि मेरी न्यू स्पेक्स जो है वो पहली वाली स्पेक्स से कैसे डिफरेंट है। अगर वो अवेयर नहीं होती, वो स्पेक्स उठाती, अपने पर्स में डालती और घर चली आती। लेकिन उसने वहां पर फील किया, उसको पता था मेरी पहली वाली स्पेक्स पतली है, उसके लेंस पतले थे, इसके लेंस मोटे हैं। तो ये जो चीज है कि उसने वहां पर ये चीज देखी, नोटिस की, मीन्स शी वॉज अवेयर। पहली क्वालिटी आ गई अवेयरनेस। दूसरी इंक्विजिटिव माइंड, कि उसने क्वेश्चन आस्क किया, उसको पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, कि मेरी अगर लेंस पहले वाले लेंस थिनर थे अब थिकर है तो ऐसा क्यों है। तो दो क्वालिटीज हमें यहां पर मिल गई। एक है अनुजा, द सेम क्वालिटीज आर एक्सप्लेन्ड, द सेम क्वालिटीज आर डिस्प्लेड बाय द अनुजा ऑल्सो। वाई? बिकॉज अनुजा को ये सबके आंसर पता थे। अनुजा ने अपनी मदर को ये एक्सप्लेन किया। अनुजा एंड हर मदर displayed the qualities of, आपने एक आ गया अवेयरनेस, इंक्विजिटिव माइंड एंड साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, कि उनकी साइंटिफिक अप्रोच थी, मतलब वो साइंस के बारे में जानना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। द ब्यूटी ऑफ दीज क्वेश्चंस इज कि इसमें पहले से ही दिया होता है कि आपने अगर इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना तो किस चीज से करना है। तो अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द लेंस मेकर्स formula. And moreover children, this question has been asked in the state board sample paper issued by the board for the coming exams, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस अभी फर्स्ट टाइम ही पूछे जाएंगे ट्वेल्थ क्लास में। तो एक स्टेट बोर्ड का सैम्पल पेपर जो है वो इशू किया गया है JNK बोर्ड की तरफ से, और वो पेपर पुनीत सर ने आई थिंक इसमें डाला था ग्रुप में। तो यू कैन सी दैट उसमें ये ऑप्टिक्स में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ये वाला, और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ये पूछा गया है। नाउ हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो पहले तो मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखूंगी। ठीक है, वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब मैंने सपोज ये हमारा यहां पर मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं अज्यूम कर लूंगी कि ये हमारा कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर मुझे पता है कि जब बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है तो ये मेरा आ जाता है 2/r। तो मैंने सिंपल इसको फॉर लिख दिया मैंने, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरी अजम्पशन है, चलो ठीक है। नाउ refractive index of plastic is less than the refractive index of glass. Actually there is a range. refractive index of plastic की भी एक रेंज होती है, ग्लास की भी एक रेंज होती है। बट जो नॉर्मल प्लास्टिक्स होते हैं, रेगुलर प्लास्टिक्स होते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। जो हाई ग्रेडेड प्लास्टिक्स होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो बट हियर वी आर टेकिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक्स इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, तो आप यहां से निकालो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसा है तो ये आपका जो फोकल लेंथ है इट इज 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, और यू कैन से f इज प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू माइनस 1, यानी कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक इज लेस, तो यहां से हमारा निकल जाएगा कि आपका जो फोकल लेंथ है प्लास्टिक की वो क्या आ जाएगी, ग्लास की फोकल लेंथ से ज्यादा निकल जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ग्लास की जगह क्या यूज करेंगे, प्लास्टिक। ठीक है, ये तब हुआ व्हेन दिस टर्म हैज बीन केप्ट एज कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को कांस्टेंट रखती हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना ग्लास में था उतना ही क्या हो जाए, प्लास्टिक में रहे, तो मेरा 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 आएगा। और वहां से अगर मैं ग्लास को रिप्लेस करूंगी प्लास्टिक से, तो मेरी फोकल लेंथ प्लास्टिक के केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
एज कंपेयर टू द ग्लास। लेकिन आपको पता है कि फोकल लेंथ बढ़ने से पावर भी चेंज हो जाती है, बिकॉज पावर इज 1/f। तो अगर फोकल लेंथ बढ़ गई तो पावर चेंज हो जाएगी। तो अगर मैंने लेंसेज चेंज किए हैं तो इसका मतलब है कि जो चश्मा मेरा नया बनेगा, अगर सेम थिकनेस को रख के बनाया जाए तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी, और वो एक पर्टिकुलर, अगर मेरी रिक्वायर्ड जो पावर है वो 0.5 है, तो वो जो चश्मा बन के आएगा उसकी पावर मेरी रिक्वायर्ड पावर के बराबर नहीं होगी। इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी। सो इन ऑर्डर टू कीप दिस फोकल लेंथ कांस्टेंट, इस फोकल लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए, क्योंकि मुझे पावर जो है वो क्या चाहिए, वो वैसी ही चाहिए जैसी कि पहले वाले केस में थी, मतलब क्लास के केस में थी। तो 1/f, ठीक है, यहां से देखो 1/f इज इक्वल टू, अब मैंने यहां लगाया म्यू p माइनस 1 इंटू 2/r। आपको पता है कि क्या हुआ कि फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई है। किस केस में? प्लास्टिक के केस में फोकल लेंथ हमारी बढ़ रही है। मैं इसको अगर फोकल लेंथ की टर्म में लिख दूं तो ये आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू p माइनस 1। ठीक है ना, यहां से आपका निकल गया ना ये वाला केस। तो इसको आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। देखो यहां पे मैंने 1/f इज इक्वल टू म्यू p माइनस 1 इंटू 2/r इज इक्वल टू, इट इंप्लॉइज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू p माइनस 1। तो ये वाली जो मेरी क्वांटिटी है, क्योंकि प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये क्वांटिटी कम हो गई, ये क्वांटिटी कम हो गई। इसको मैंने फिक्स्ड जितना है उतना ही रखना है। तो अगर ये कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो इसको फिक्स रखने के लिए हमें इसको भी कम करना पड़ेगा। तो देयरफॉर radius of curvature has to be reduced। देखो अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो यहां देखो, सपोज मैंने एक नंबर लिखा है 8 इज इक्वल टू 16/2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें फिक्स्ड रखनी है। तो अगर मेरा ये क्या है, ये न्यूमरेटर 16 है और ये क्या है, डिनोमिनेटर 2 है। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 1, तो इस वापस से 8 लाने के लिए मुझे न्यूमरेटर को भी डिक्रीज करना पड़ेगा ना, तभी जाके 8/1 इज इक्वल टू 8 आएगा। तो सिमिलरली मेरा म्यू p माइनस 1 रिड्यूस हो गया, ये वैल्यू कम हो गई, और इसको मैंने फिक्स्ड रखना है, तो ये कम हो रही है। तो ऑब्वियसली मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम कम करते हैं, द लेंस बिकम्स थिक। जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम करते हैं तो लेंस कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। देखो जितना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दूर होगा उतनी ही लेंस आपकी थिन होगी, और जितना, क्योंकि उसकी शेप कर्व्ड आ जाएगी, जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उतना ही उसका सरफेस जो है वो ज्यादा कर्व्ड होगा, और जितना कर्व्ड होगा उतना ही वो थिक होगा। तो आपका यहां से ये क्वेश्चन निकल जाता है। आई होप इट इज क्लियर। Thank you, students. This was all what I had for you today. Till then, goodbye. Stay home, stay safe.